हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड। मैं हूं उजैर यूनुस और मेरे साथ अंबर शमसी मौजूद हैं। पिछले हफ्ते हमने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि अंबर ने बारबी देखी और उसके बाद उन्होंने कहा कि बारबी की दुनिया से बाहर नहीं निकलना। तो 2 हफ्ते बाद हम वापस आए हैं पॉडकास्ट में, और पिछले हफ्ते खबरें भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और इस हफ्ते जो है लगता है कि टू मेक अप फॉर इट अ लॉट ऑफ एक्शन हैपेंड बोथ इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड। तो कवर करेंगे। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट स्टोरी इज इमरान खान का अरेस्ट यस्टरडे, तो शाहाना केस की सेंटेंसिंग के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो है वो सेंसस के रिजल्ट्स के ऊपर भी डिसीजन लिया। उसका इम्पैक्ट इलेक्शन डिले की बात हो रही है, और फिर विल लुक एट 2 other केसेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, राहुल गांधी इन इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो खुद भी एक केस फेस कर रहे हैं। तो अंबर, पैक्ड एजेंडा। पहले तो ये बताएं, बारबी कैसी लगी? मैंने नहीं देखी अभी तक। मैंने ओपेनहाइमर देख लिया है, तो बारबी इज ऑन माय लिस्ट, बट हाउ हाउ डिड यू फाइंड इट? So, Uzair, Barbie मैंने जरूर देखी, and I must admit that I was very reluctant, and my kids were very convinced that I need to see Barbie, डिड यू और वेयर उन्होंने पिंक? मेरे I actually didn't, और मुझे बहुत डांट पड़ी, because I will say कि I think it was the second week that I was on जब मैंने जाकर देखी। मैंने पिंक नहीं पहना हुआ था, और बहुत सारी खवातीन they wore the Barbie pink of all kinds, some very very Barbie t-shirts, Barbie sweatshirts, but others just coordinated, and yes, it was a packed house, and there was lots of applause, खास तौर पर एक दो monologues हैं जो बहुत मशहूर भी हुए हैं about how women have it so difficult. I think there was a lot of sort of applause on that. I really enjoyed it, and the reason I enjoyed it, I had no expectations in the sense कि मैंने देखनी नहीं थी, और मुझे नहीं पता क्या होगा उसमें. But I do think it's a very clever sort of satire about power and gender, and I don't think it's necessarily a feminist film as such. I think the Ken character, uh, and his development was very interesting. I would recommend it for anybody. Very funny. Yeah, it's a great film. Well, I ओके, think well चलें। worth the hype. I'm just gonna say well worth the hype. Well, in that case, I will watch it. It's on my list, but I could So not. there's I a couple watched. of scenes that are incredibly moving, and I think it's more about humanity and finding humanity, and power and the balance of power than anything else for me, more than about women and men and gender. And yes, that's there. इससे ये भी अच्छी खबर है कि पंजाब में इस हफ्ते रिलीज कर दी गई थी. So I saw lots of my friends and family watching it in Punjab as well. कुछ एक दो लफ्ज उन्होंने सेंसर किए थे जो मतलब समझ नहीं आई थी उसकी क्या जरूरत थी. People who are concerned of it being promoting LGBTQ plus agenda should, I mean, it's there, but it isn't there. I personally have no issues with it. So maybe I don't see it. But yeah, I think it's more about humanity and power. Okay, chale, I will watch it as well and give my feedback. I watched Oppenheimer last week, which was also fantastic, worth the watch. Yeah. It's directed really well. The score is really good. Or जो उसकी story है, I know there was criticism that it doesn't get into the geopolitics of the war itself, but I was like, it's not about that. It's about About the science man. and a scientist and the man and what happened to him. And it does a good job also in getting into sort of the um, fear of communism that was there lingering in the United States after the war and the impact that had on Oppenheimer, though, which was a good way to also remember in the age we're in today, to remind ourselves के जो आजकल हो रहा है अमेरिका में फॉर एग्जांपल या दुनिया भर में, इससे काफी ज्यादा बुरा जो है वो 60-70 साल पहले हो रहा होता था. तो इट्स कम अ लॉन्ग वे इन दैट सेंस दैट वो जो हियरिंग्स थी और उसका जो इम्पैक्ट वो दिखाते हैं in the United States, it was pretty interesting as well. So worth a watch. Long movie, but worth a watch as well. Yeah, I mean, I was told that I should watch it on a Saturday and not a Sunday because it's going to stay with me. It's a heavy movie. So next Saturday, fingers Yeah, crossed. जब दिन में गर्मी ज्यादा हो तो आप अंदर एयर कंडीशन. नहीं, ये मैं बता दूं, नजर ना लगे, कराची का मौसम पिछले हफ्ते से बहुत हसीन और बहुत अच्छा रहा है. अच्छा. Badal, low temperatures, not too high humidity. You've got your famous Karachi hawa. So I've been enjoying the weather for once in Karachi. चलें, दैट्स गुड. वेदर से आगे बढ़ते हैं, मूवी से आगे बढ़ते हैं अंबर. इस हफ्ते फ्लरी ऑफ एक्टिविटी इन इस्लामाबाद.
पहले तो ज़रा बताएं खान साहब का केस, उसका वर्डिक्ट आया, उसके ऊपर प्रोसीजरल क्वेश्चंस हैं, बट खान साहब करंटली इज इन अटक जेल। यस, तो ज़रा बताएं ऑडियंस को कि ये केस के ऊपर क्या हुआ और इतनी जल्दी से अरेस्ट कैसे हो गया। जल्दी से तो नहीं हुआ था उजैर, क्योंकि तोशा खाना का केस जो है वो तकरीबन 1 साल से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाहिर है तोशा खाना में इमरान खान साहब को गिल्टी भी करार दे चुकी है, लेकिन जाहिर है अदालत की तरफ से सजा होनी होती है। अ, ये केस जस्ट एज अ रिमाइंडर, इसमें 2-3 जो कुछ डेवलपमेंट्स अहम है वो ये याद रखने की जरूरत है कि इनिशियली जब ये केस तोशा खाना के कैसे सामने आया था, एक सहाफी था, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत पूछा था कि इमरान खान साहब को कौन से तोहफे तहफ मिले हैं फॉरेन कंट्रीज, ममालिक डिग्निटरीज की तरफ से, और उन्होंने कौन से रिटेन किए थे, आई बिलीव। वो सहाफी, उनको जवाब ये मिला था कि ये जो फॉरेन रिलेशन है, जो ताल्लुकात हैं, उनको मुतासर हो सकता है, इसलिए जवाब नहीं मिला था। और उनको अपनी नौकरी से भी फारिग कर दिया गया था, तो ही वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस इवेंचुअली और ये ऑब्वियसली। पीटीआई की हुकूमत में हुआ था। ये पीटीआई के हुकूमत में ही ये मामला हुआ था, और वो जाहिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ा। जाहिर है एक मुखालिफ जमात यानी कि जो पीडीएम और प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये तेजी भी इसमें आई। तेजी भी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि काफी 1 साल से चल रहा था। इसमें कुछ जो जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को देने चाहिए थे, वो उन्होंने जो फंडिंग का जो केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ उसी उसी तरह के कुछ, मैं कहूंगी कि ज्यूरिस्डिक्शन को जो क्वेश्चन करते हैं, कोर्ट अदालत में अपेयर ना होना, डिलेइंग टैक्टिक्स, तो जिसको कहा जाता है, दे वर यूज्ड इन, बट देर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मौकफ रहा है, बार बार वो जो कौम से खिताब भी करते रहे थे गिरफ्तारी से कबल, और जो दिफा करते रहे थे कि ये मेरी घड़ी थी, मुझे बेचने का हक था। लेकिन असल जो केस था, एंड जस्ट एज अ रिमाइंडर, ये नहीं था कि इमरान खान साहब ने घड़ी अपने पास रखी या बेची। इट्स वंस इट इज हिज प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू अंडर वैल्यू किया गया या नहीं किया गया था। उसका एक्चुअल केस ये था कि उन्होंने घड़ी बेचकर वो जो उनके पास जो रकम आई थी, वो अपने जो गोशवारे जमा करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें जाहिर नहीं किए थे। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द इनकम, जो वो उनका दावा था। रिसीट भी जो है वो उन्होंने नहीं पेश किया स्कूल। The question of, I think, apart from that, is actually the sort of the central point. उसमें हमारे पास बहुत सारे जाहिर है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग डाइवर्जेंसीज आई थी। उसके बाद हमें नजर आया कि तोशा खाने की जो एक डिटेल लिस्ट थी, उसमें तमाम वज़राए आज़म सदूर जो गुजर चुके हैं पिछले 10-20 साल में, उनके कुछ, मरियम नवाज साहिबा का मशहूर था कि उनको कौन से तोहफे तोहफे मिले हैं, उनकी वैल्यू क्या की गई थी। हिस्टोरिकली तो ऐसी नजर आ रहा है कि रिटेन भी किए हैं, बेचे भी हैं, गिफ्ट और लोगों को दिए हैं, अंडर वैल्यू भी किए गए हैं। तो दैट इज एक्चुअली नॉट द क्वेश्चन, एवरीबडीज डन इट। इंटरेस्टिंगली अभी ये बहुत सारी, ये जो डबल सेंचुरी में हाफ सेंचुरी ऑफ बिल्स जो थी, तोशा खाना का कानून भी मंजूर हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट वीक, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम जो तोहफे तहफ हैं वो अब स्टेट के पास ही रहेंगे, रियासत की ये मिल्कियत रहेगी, और टू डू व्हाट दे वांट विद इट, परहैप्स ऑक्शन, बट आल्सो म्यूजियम में रखा जाएगा अगर वो खास गिफ्ट्स हैं। other entertaining things that happened in the meanwhile, से शादी खानजादा, उन्होंने जिस शख्स को बेचे गए थे एज अ बिजनेसमैन फ्रॉम कराची, उसका इंटरव्यू किया था कि वो उसमें उन्होंने बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी को एज मिडल पर्सन, आई गेस उनको नामजद भी किया गया था। इमरान खान ने उस पर एतराज किया था, एंड प्रॉमिस टू सू शाजिब खानजादा एंड उमर, दैट डिडंट हैपन. At the end of the day, clearly, there are lapses in terms of Imran Khan's defense, and there are also lapses in terms of अदालत और अदलिया का जो रवैया था। लैप्सेस इस तरह से कि जज जो है वो कई माह पहले उनकी तब्दीली हो गई थी, यानी कि जो सेशंस कोर्ट में जज है, तो जज हमायूं दिलावर जो है, जिससे बहुत एतराज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, he became the judge here in this case. So there is that judge was changed. It kind of reminds me of जब
इंस्ट्रक्शंस आई थी पैनामा में भी, कि व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस आई थी कि कौन से जजेस होने चाहिए, सो देयर इज अ बिट ऑफ दैट. दूसरा जो डिफेंस उनकी थी कि कौन से विटनेसेस पेश करने हैं, उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही है कि हमें मौका नहीं दिया गया. और जाहिर है जब सजा दी गई थी तो डिफेंडेंट या जिसको मुजरिम जो है वो पेश नहीं था. अब इसमें जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस, बहुत आखिर में 9 मई के बाद खास तौर पर बहुत जल्दबाजी में ये केस सुना गया. इमरान खान साहब और उनके वकील अक्सर इस्तिस्ना हासिल करते थे अदालत से इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स की पेशी के दौरान वो नहीं पेश होंगे. लग तो यही रहा था कि जज हमायूं दिलावर बहुत जल्द इसको निमटना चाह रहे थे और जो कुछ डिलेज थे उसको एंटरटेन नहीं करना चाह रहे थे. एंड ऑब्वियसली दीज आर सम ऑफ द ग्राउंड्स जब अब इसको सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस की तरफ जा रहा है. और उस पर भी सवाल ये है कि ये कब सुनवाई होगी. These will be some of the points that PTI and its lawyers and Imran Khan and his lawyers will raise. So here we are. Imran Khan stands disqualified. घड़ी के ऊपर एक और यानी कि टैक्स इशू. पहले नवाज शरीफ थे जो उन्होंने अपनी इनकम रिसीव नहीं की थी, उसकी बुनियाद पर वो नाअहल हो गए थे. rather than the Panama case itself in terms of कौन बेनिफिशरी था, एवन फील्ड किसकी थी और किसने बेचा. और इसी तरह इस वक्त इमरान खान भी एक टैक्स इशू पे इस वक्त नाअहल है. और I'm going to stop there because obviously implications in terms of elections or very disappointing turnout. जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से कबल कुछ मैसेज पैगाम रिकॉर्ड किया था. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तो डिसमेंटल बिल्कुल कर दिया है पोस्ट 9 मई. तो हम ज्यादा तवक्को नहीं कर रहे थे कि बहुत बड़ा टर्नआउट होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट. ह्यूज कॉन्ट्रास्ट ऑब्वियसली फ्रॉम द लास्ट टाइम ही वाज अरेस्टेड. इंडीड, और ये भी कह सकते हैं कि लास्ट टाइम तो बड़ा जो कैद थी बामुशक्कत नहीं थी, इस बार इतनी आसान कैद नहीं होगी. अटक जेल में उनको मुंतकिल किया गया है और वहाँ जो सहूलियात हैं, इवन दो एज अ प्राइम मिनिस्टर he can get VVIP facilities. Facilities are kind of limited in Atak jail. थैंक यू फॉर दैट ओवरव्यू अंबर. और इसके अंदर ऑब्वियसली जैसे आपने कहा लंबा केस था, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे. पीटीआई जो कि राइट्स और फ्रीडम की आजकल बात करती है, उसके दौर में जिस शख्स ने आरटीआई फाइल की उसकी नौकरी चली गई. वो ऑन द रिकॉर्ड है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में टॉकिंग अबाउट हिज ओन ऑर्डील इन दैट केस. एंड नाउ एक और वजीर आज़म जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया. तो काफ़ी सारे लोग एटलीस्ट दूसरी तरफ नून लीग वाले सेलिब्रेट कर रहे थे. उसी तरह जिस तरह 17 के अंदर पीटीआई वाले नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन सेलिब्रेट कर रहे थे. आई डोंट थिंक दिस इज़ अ मोमेंट टू सेलिब्रेट एट ऑल. जब एक मुल्क बिल्कुल तो एक मुल्क में फॉर्मर वजीर आज़म हो या करंट वजीर आज़म हो, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कोर्ट्स ने जो है नाअहल किया था. इट्स एन अनफॉर्चुनेट डे फॉर डेमोक्रेसी इन द सेंस कि हम सबको मालूम है कि क्यों डिस्क्वालीफाई होते हैं और कब होते हैं मोर इम्पोर्टेंटली. और अगर खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की थी और तोशाखाना के सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर केस बनता है. लेकिन फिर हम ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि अचानक से इतनी एंड में जाके सबको मालूम कैसे था कि 5 अगस्त को ही फैसला आएगा. ये बात जो है पूरे इंटरनेट पे मशहूर थी. एंड अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस जजमेंट के आने से पहले एक वो था डिसीजन था कि आपने कुछ चीज़ों को रिव्यू करना है, तो वो भी पूरा नहीं किया गया. तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब पीर के दिन या इस हफ्ते क्या डिसाइड करती है इस केस से रिलेटेड. बट अगेन जब सियासी हरीफों को डिस्क्वालीफाई इस तरह किया जाए इकामे के ऊपर या मिस डिक्लेरेशन के ऊपर, तो फिर एक सवाल बनता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या जो है वो वजूहात क्या हैं. एक चीज़ इसके अंदर मैं ऐड कर दूं कि क्योंकि काफ़ी इस पर भी बात हुई कि पीटीआई के लोग इतने ज़्यादा सड़कों पे नहीं निकले, जहाँ तक वो निकले
वहाँ भी रिपोर्ट आई कि उनको उठा लिया जाता था फौरन, या उनकी जो गाड़ियाँ थी उनको उठा लिया जाता था एसेट्रा। तो मौका तो नहीं, वो जो फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट पीसफुली, जिन लोगों ने कोशिश की, बहादुरी दिखाई, उनको भी ये मौका नहीं दिया गया इंतज़ामिया की तरफ से। तो वो भी एक सवाल बनता है अबाउट द स्टेट ऑफ बेसिक फ्रीडम्स इन पाकिस्तान। एंड ऑफ कोर्स यू नो मैनी पीपल अंबर, एंड आई नो मैनी पीपल जो कि ऑन द रन हैं, क्योंकि या मुल्क से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर छुपे छुपे फिर रहे हैं, क्योंकि देयर इज एन ऑन गोइंग वेव ऑफ सप्रेशन एंड रिप्रेशन अगेंस्ट दीज और पीपल। ये भी मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ था कि लाहौर में खास तौर पे कुछ रेड्स भी हुए थे जिसमें कुछ कारकुनान को दोबारा से गिरफ्तार किया। तो बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इन एंटिसिपेशन, यानी कि ये जो तवक्को जो थी, और बिल्कुल हमें पता था, बहुत सारी बात हो चुकी थी कि 5 अगस्त को जिस दिन सीसीआई यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की डिजिटल सेंसस और इंतखाबात के हवाले से कुछ फैसला होना था, उसी दिन इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला हुआ और उससे कबल रेड्स भी हुए थे। I do want to say, I think this is a very important point as well. एक और वजीर आज़म अफसोसनाक बात है, मैं कहूँगी कि ये मतलब हमारी तारीख बदलती नहीं है, इसी वजह से ये अफसोसनाक होता है कि व्हाट हैज चेंज, कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तब ये केसेस आगे नहीं बढ़ते। आई विल से टू बी फेयर कि ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ केस था, ये उनके दौरे हुकूमत में ही उसकी सुनवाई हुई थी, बट चले, इमरान खान के केस में ये नहीं था। That is obviously the real tragedy. Nothing changes, but I do think that at the least, even though there's a lot more cases against Imran Khan, he does have a fair trial. पे सवालात उठ तो रहे हैं और जायज सवालात है, लेकिन at the least he does, because ये एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, unlike in the case of Yusuf Gilani or Nawaz Sharif, at least he does have the right to appeal. और उम्मीद की जा रही है कि उनका जो सजा जो है वो मुअत्तल हो। उसका ये नहीं मतलब कि वो उनकी नाअहली खत्म होगी, इसका ये मतलब है कि वो उनको जेल में रहने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो आई थिंक लेट्स सी कि इसका प्रोसेस आगे कहाँ जाता है। एक तरह से इस पे आखिरी जो मुझे कंसर्निंग डेवलपमेंट ये लगी कि यू नो यू आर अ जर्नलिस्ट अंबर, तो यू नो द पॉलिटिशियंस के टैक्टिक्स के फ्राइडे शाम को अमेरिका के अंदर होता है कि जो खबर आपने दबानी होती है वो आप फ्राइडे शाम को रिलीज करते हैं, ताकि वीकेंड से पहले जो है लोग इतना टेंशन पे ना करें वीकेंड साइकिल में। तो सैटरडे का दिन था, जैसे आपने कहा सीसीआई की मीटिंग भी हो रही थी, ये डिसीजन भी आया, और ये दिन कश्मीर का दिन था फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टैक्टिक भी था कि ओवरलोड कर दो न्यूज़ साइकिल को एक दिन के अंदर, जहां शायद मे बी माई रीड ऑफ दिस एंड वुड लव योर थॉट्स वाज के हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि कश्मीर पे ज़्यादा बात हो, तो ये सियासी चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्वर्जेशन हो गई पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। और अगर हम आईएसपीआर की स्टेटमेंट भी पढ़ें कश्मीर के ऊपर, तो वो काफ़ी एटलीस्ट मुझे तो होम्योपैथिक जैसी कॉन्वर्जेशन लगी, जो कि अगेन फिट्स विद द कॉन्वर्जेशन दैट आई हैव बीन फॉलोइंग, कि पाकिस्तानी हुकूमत शहबाज शरीफ के आने के बाद से कुछ कंपेयर टू द पीटीआई गवर्नमेंट, द स्टेटमेंट्स हैव बिकम watered down on Kashmir, Article 370 etc. तो ये भी एक कॉन्वर्जेशन, अगेन पाकिस्तान में वो माहौल ही नहीं है कि ये कॉन्वर्जेशन हो, लेकिन 5 अगस्त जो है वो कश्मीरियों का एक तरह से दिन था, और उस दिन पूरे पाकिस्तान में जो कॉन्वर्जेशन हुई वो या तो सेंसस के ऊपर हुई या खान साहब के अरेस्ट के ऊपर। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने नोट किया। Yeah, the timing is absolutely interesting, इसलिए क्योंकि अब हमें भी पता है कि असेंबली का आखिरी हफ्ता है, 12 अगस्त को टेक्निकली आखिरी दिन होना है। अब मेरा तो हमेशा से मौकफ रहा है कि ये इमरान खान का फैसला असेंबली से पहले होगा और फिर इंतखाबात का, और वही हुआ। पर आई डू थिंक ये जो कश्मीर का मामला आपने कहा, आई एक्चुअली हैव अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन इट। आप सही कह रहे होंगे, पाकिस्तान ने जो एक रिवायती कुछ बयानात होते हैं, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे एसपीआर हो, वही रिवायती बयानात और वही रिवायती एहतजाज का तरीका जो है वो कर रहे हैं, जो हम कह सकते हैं कि इमरान खान ने, हम कह सकते हैं कि चले, वो जो जुम्मे के जुम्मे आपने बाहर निकल के एहतजाज करना था। मुझे तो तीनों ये सारे होम्योपैथिक ही लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान कैन नॉट मूव द नीडल ऑन कश्मीर, एंड इफ वी हैव रियलाइज दैट, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट?
Yeah, no, I agree, but yeah, I think we're in agreement over there कि वो ये because वो temperature नीचे रखना है या नीचे लेके आना है, तो this was a convenient calm strategy as well कि attention सियासी front के ऊपर जो है वो overload की जाए. But related to that, CCI का अंबर इजलास हुआ, उसके अंदर सेंसस के जो रिजल्ट्स आए मैं जल्दी से पढ़ दूं कि Yes. 2017 में पाकिस्तान की आबादी थी 207.68 मिलियन. वो बढ़ के अब 241.49 मिलियन हो गई है. इंटरेस्टिंग ट्रेंड इसके अंदर अंबर ये है कि जब हम इमर्जिंग और डेवलपिंग मार्केट्स की बात करते हैं तो बर्थ रेट ओवर टाइम नीचे आता है. पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 1998 के सेंसस के हिसाब से 2.69% बढ़ा था. 2017 में 2.4% बढ़ा और 2023 में 2.55% बढ़ा है. यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोविड बेबी बूम आया है मिनीसा पाकिस्तान के अंदर. बर्थ रेट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ गई है पाकिस्तान की. और इंटरेस्टिंग उसके अंदर ये है कि सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बलूचिस्तान में 3.2%. उनकी आबादी बढ़ी है, तकरीबन 15 मिलियन लोग हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर. और पंजाब भी 2.53% उसकी पॉपुलेशन ग्रो की है, 127.68 मिलियन. लेकिन केपी के अंदर जो है बर्थ रेट काफ़ी कम हुई है, ग्रोथ रेट 2.38% विद 40.85 मिलियन पीपल. तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स भी हैं. और ऑफ कोर्स एंड आई हैंड इट ओवर टू यू ओवर हियर, इसका एक लिंक है इलेक्शन से, तो वो भी ज़रा बताएं कि सीसीआई की मंजूरी के बाद अब प्रोसीजरली क्या होना है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन तो टाइम पे नहीं होने वाले. जी, देखिए, सबसे पहले याद रखने की जरूरत है कि हमारे आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नई जो हल्का बंदियां करनी होती है नए सेंसस की बुनियाद पर, उसको नोटिफाई करना होता है इंतखाबात से 4 माह कबल. अगर हम तवक्को हम इसको इस हिसाब से देखें कि in order for the elections to be held in October, November, the Election Commission of Pakistan should have completed the delimitation exercise, which is कि जो नई constituencies होती हैं based on the new population, उसको किस तरह से कहाँ से demarcate करना है, उसको जुलाई में कर देना चाहिए था. और एक मैं इंटरप्ट अगर आपको करूं अंबर, जस्ट फॉर द ऑडियंस, ये ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आबादी का लेवल तब्दील होता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो एक फंडामेंटल नॉर्म है डेमोक्रेसी का कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. तो उस वजह से ज़रूरी है ईसीपी के लिए कि वो डीलिमिटेशन वापस करे, कंस्टिट्यूंसी को रीड्रॉ करे, ताकि ऐसा ना हो कि एक कंस्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 10 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कंस्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव वो सिर्फ 10,000 को कर रहा है क्योंकि पॉपुलेशन मूव हो गई है. तो उस वजह से आपने ये रीड्रॉ करना बड़ा जरूरी काम होता है ये. Absolutely. Or we had problems in the last census as well, but I won't go into those details because बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी. अभी हाल की बात करते हैं कि आई थिंक इट वाज अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. सीसीआई की मीटिंग जब चल रही थी, जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कुदूस पजेंड्रो वो देर से पहुंचे थे. ऑलरेडी मुराद अली शाह के कुछ एतराजात सामने आए थे. इससे कबल उन्होंने कुछ मीडिया को इंटरव्यूज दिए थे, उनके बयानात भी सामने आए थे. तो डिजिटल सेंसस पे शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें अपने इत्तेहादियों से भी हुई थी. इस पे आपको पता है कि पिछले सेंसस पे एमक्यूएम पाकिस्तान की बहुत एतराज था. अ, हमें खबर इनिशियली मिली थी कि नए सेंसस की मंजूरी दे दी गई है. इसका मतलब यही होना होता है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करनी होगी. और ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, इट कैन टेक अप टू 6 months. सो विच मीन्स कि अप्रूवल टू नाउ, आई मीन आई थिंक मार्च का एक अंदाजा हो रहा था. अब उसका कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर सीटें एडजस्ट होती हैं तो आपका आइन तो यही कहता है कि अगर सीट्स में जो सीट नंबर्स और सीट प्रोपोर्शंस आइन के अंदर होते हैं, आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, असेंबलियां तहलील हो जाएंगी आपकी. वैसे ही क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों से इस्तीफा दे चुके हैं, तो 2/3 अक्सरियत तो मैसर नहीं होनी थी. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ड्यूरिंग द डे हमने देखा कि पहले मंजूरी की खबर आई, फिर वो वापस ले ली गई, फिर दोबारा से पता चला कि मंजूर हो गया है नया डिजिटल सेंसस. मगर ये भी हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी सेंसस की, उसके मुताबिक आबादी में इजाफा तो हुआ था जैसे आपने बताया था, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि सीट्स जो है वो तब्दील होंगी. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी भी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी.
without changing the number of seats, which means आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत अच्छा, तो नहीं होगी. just to as for So the there is a audience. delay, but it may not be as complicated legally. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया, क्योंकि ये कल ही खबर आई थी. वो आज एक बहुत मसरूफ है, एक बाई इलेक्शन, वो खैबर पख्तूनख्वा में बाई इलेक्शन में मसरूफ रहे हैं. पर वी नाउ नीड टू हियर फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि इस एक्सरसाइज में कितनी देर लगेगी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है अंबर, मैथमेटिकली यूनिक सा आउटकम निकला है, राइट? अगर हम मैथमेटिकली देखें कि सूबों के आपस का जो रेशियो है पॉपुलेशन का, वो इतना तब्दील नहीं हुआ, जिसकी वजह से विद इन अक्रॉस प्रोविंसेस जो सीट्स का मेकअप है वो चेंज नहीं करना. तो अगर बलूचिस्तान की, आई एम मेकिंग दीज नंबर्स अप राइट नाउ, कि 20 सीटें थीं तो अभी भी 20 ही रहेंगी असेंबली के अंदर, उनमें 25 नहीं होगी, क्योंकि बलूचिस्तान की प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन उतनी रही. बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेकिन सूबों के अंदर प्रोपोर्शन चेंज हुई है. तो सूबों के अंदर का जो मेकअप है कि कराची की इतनी सीटें होंगी डिलिमिटेशन के बाद, सक्खर की कितनी होंगी, क्वेटा का चेंज होके ग्वादर को कितनी मिलेंगी, ये चेंज होगा डिलिमिटेशंस की एक्सरसाइज के अंदर. तो वो जो फेडरेशन का पावर स्ट्रक्चर है सेंसस के बाद, वो वैसे का वैसा ही रहा. लेकिन फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं प्रोविंसेस, उनके अंदर का पावर स्ट्रक्चर इवॉल्व होगा. मैथमेटिकली जब आबादी चेंज होती है तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह से काम हो. और जो मई के अंदर रिजल्ट्स आए थे, उनसे लग तो यही रहा था कि बलूचिस्तान की सीटें बढ़ेंगी, पंजाब की कम होंगी. लेकिन क्योंकि अभी आखिरी आखिरी काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर भी जो है अब नंबर्स देखने होंगे और एनालिसिस करना होगा कि ये कैसे हो गया कि मई के बाद अब अगस्त के अंदर वी आर बैक टू स्क्वायर वन, इन द सेंस कि वो रेशियो जो है वो उतना चेंज नहीं हुआ जितना मई के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कि लास्ट डेटा Right. डम था. अभी क्योंकि सब जाहिर है इस वक्त अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एंड आई थिंक देयर शुड बी सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज कमिंग आउट ऑफ इट. बस जब मई में जब इनिशियल डिजिटल सेंसस के जो नताइज सामने आए थे, उसके मुताबिक, अंदाजों के मुताबिक पंजाब की सीटें कोई 8 कम होनी थी, बलूचिस्तान की सीटों में इजाफा होना था तकरीबन 7, सिंध में 1 सीट का इजाफा होना था, उसमें कराची से नहीं, सिंध के बाकी इलाकों से उसमें एक और सीट ऐड होनी थी, केपी का वही रहना था कमोबेश. सो दैट वाज अ कैलकुलेशन दैट वाज मेड बैक देन. उसके बाद एक जाहिर एक्सरसाइज होता है पोस्ट इन्यूमरेशन, यानी कि एक सर्वे होता है, यानी कि आपको फिर तस्दीक करनी होती है सेंसस की रिजल्ट्स की. सो दैट एक्सरसाइज हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. अब उसमें दिलचस्प बात यह है, और मैं इस वक्त अदनान आमिर है, एक बहुत अच्छे सहाफी हैं, निकी एशिया के लिए लिखते भी हैं, उनका अपना एक बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म बलूचिस्तान वॉइसेस है. उन्होंने एक नुक्ता उठाया है, और मैं जस्ट लीविंग इट देयर जस्ट फॉर योर थॉट, बिकॉज there will now be lots of questions about whether ये हम gerrymandering की एक और कोशिश है, और या क्योंकि इलेक्शंस डिले भी करने हैं, लेकिन वी हैव टू sort of circumvent the 2/3 majority approval by the parliament, right? So उनका ये कहना है कि जब official results announced थे, तो population बलूचिस्तान की उनको लगता है कि ये इस वक्त टैम्पर किया गया है पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की इलेक्शन रिजल्ट्स. क्यों वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 12 मई को जब बलूचिस्तान की जो आबादी है was about 20.63 मिलियन. इसका मतलब है कि जो अब ऑफिशियल सेंसस अप्रूव हो चुका है सीसीआई की तरफ से, उसकी आबादी में बलूचिस्तान का इनिशियल जो ज्यादा बताया गया था, अब वो तकरीबन 7 मिलियन लोग. 14.89. Yeah, so 7 million, because I mean, I think there were various iterations or versions of this. According to Adnan Amir, this is not mine, I want to sort of clarify, a real cut in the population of Balochistan is about 7 million people. So 7 million people have disappeared, essentially. I mean, that's according to Adnan Amir. अब PBS का ज़ाहिर ये आर्ग्यूमेंट है कि 12 मई के जो फिगर्स थे वो फाइनल नहीं थे, लेकिन उनका आर्गुमेंट ये है अदनान आमिर का, इट लॉजिकली मेक सेंस एज वेल, कि बाकी सूबों की जो इनिशियल आपकी रिलीज हुई थी फिगर्स, वो तकरीबन या वही हैं या उनमें इजाफा हुआ है. खास तौर पे फवाद चौधरी हो जाए, राना सनाला हो जाए, जाहिर है जो पंजाब के सियासतदान थे उनको ये फिक्र हो रही थी कि पंजाब की सीटें कम हो जाएंगी, ये कैसे हो सकता है, पंजाब की अहमियत कम हो जाएगी, which has a big bearing on politics and seats and elections and all of that. So I think that ये जो results हैं, इसमें
ایبسولوٹلی آئی تھنک جو بلوچستان کے چیف منسٹر جو نمائندگی کر رہے تھے اپنے صوبے کی، انہوں نے کیوں نہیں سوال اٹھائے، اس بھی ان کی خاموشی یہ سوال ظاہر پوچھنے کی بات ہے. سو I'm gonna end it here that we have ہم نے جگاڑ تو کر لیا ہے تاکہ انتخابات میں تاخیر ہو، لیکن اتنی بھی تاخیر نہیں اور اتنی قانونی پیچیدگی نہیں ہو. لیکن اس میں جیسے پچھلے سینسس کو بہت جلد بازی میں اپروو کیا گیا تھا اور عبوری اس کو یعنی کہ ایک ٹیمپرری آپ کو فار دا ٹائم بینگ 2018 کے الیکشنز کے لیے اپروو کیا گیا تھا. we're seeing the same similar exercise this time as well. بالکل. اینڈ اگین یہ جو ایک طرح سے کریٹو کانسٹیٹیوشنلزم یہ ہے کہ ڈیلے ہو جائے لیکن 2/3 اکثریت نہیں ہو، کیونکہ اسمبلی تو ہوگی نہیں، تو پھر کیسے ہوگا یہ سارا کام. تو اگین جگاڑو کام سے پھر جو ہے وہ رزلٹ جگاڑو ہی ہوتا ہے کہ 20 کلومیٹر پہ تو گاڑی چل جاتی ہے، آپ 40 پہ لے کے جائیں تو خطرہ ہے کہ پہیا جو ہے وہ نکلا ہے باہر. تو یہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگین اس شو پہ ہم بات کر چکے ہیں، کافی سارے اور لوگ کافی مہینوں سے بات کر رہے تھے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہونے، CCI کی ڈیسیژن کو ایکسکیوز بنایا جائے گا ڈیلے کرنے کے لیے. وہ اب ہمارے سامنے ہے. میٹنگ سے پہلے ہی شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن نئے سینسس پہ ہوں گے، تو ایوری بڈی واز کلیئر couple of weeks ago کہ یہی ہونا ہے. اینڈ اگین پہلے سینئر جو وزراء تھے وہ بار بار کہتے نہیں الیکشن پہ کوئی تاخیر نہیں ہوگی، پرانے سینسس کی بنیاد پہ کر لیں گے. بٹ آفٹر شہباز شریف جس کو کہتے ہیں دھماکہ خیز بیان، جسے پتا چل گیا کہ اشارہ ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے، وہی ہوا. بالکل. اب تیسری چیز امبر اس سے لنک جو کہ اس ہفتے کی خبر آئی وانٹڈ ٹو ٹاک وتھ یو اباؤٹ ایز ویل، وہ بھی لنکڈ ہے میرے نزدیک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس آف الیکشن سے. وہ یہ کہ دھڑا دھڑ اسمبلی کے اندر قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے، فاسٹ فوڈ لیجسلیشن کے وہ ویب سائٹ پہ قانون اپلوڈ، پیج اپڈیٹ نہیں ہوتا اور قانون پاس ہو جاتا ہے. کیونکہ میں کاؤنٹ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ جو نیشنل اسمبلی کا بلز پاسڈ کا پیج ہے وہ اپڈیٹ اتنا ہوا ہی نہیں تھا جتنی تیزی سے بل پاس ہو گئے تھے. فاسٹ فوڈ لیجسلیشن، فاسٹ بالکل فوڈ لیجسلیشن میکڈونلڈ سٹائل جو ہے وہ دھڑا دھڑ آپ کو بلز پاس ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈیلے کرنے کا الیکشن کے اگلے سال کے اندر جو سارے لیجسلیٹو کام ہو سکتے تھے اگر الیکشن ٹائم پہ ہوتے اور نئی حکومت ہم کہیں اکتوبر نومبر میں آ جائے تو وہ لیجسلیٹ کر سکتی تھی. لیکن کیونکہ ایک تھا فیلنگ تھی کہ ڈیلے ہوگا تو انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے بڑے امپورٹنٹ بلز جو ہیں وہ پاس کر دو. حتیٰ کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بل کے اوپر کہا کہ وہ فائنینشیل اتھارٹی کرائمز والے بل کے اوپر کہ آپ اسے سنڈے کے سنڈے ہی پاس کر دیں، کیونکہ اگر ڈیلے کیا تو پاکستان کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن خطرے میں پڑ جائے گی. یہ اتنا امپورٹنٹ بل ہے انور، اتنا امپورٹنٹ بل ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ بھائی جان اگر اتنا امپورٹنٹ بل تھا تو آپ نے مئی میں کیوں پاس نہیں کیا، اپریل میں پاس کیوں نہیں کیا، تو آخری دن آپ کو آ کے یہ بل کیسے یاد آیا. تو یہ بھی ایک طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے جمہوریت کا، جمہوری کا روایات کا، کہ ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ جو ہے وہ درجنوں بلز پاس کر کے جا رہی ہے جہاں نہ اپوزیشن ہے، جہاں نہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، جہاں خود پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے یہ قوانین پڑھے ہی نہیں ہیں، آپ پاس کروا رہے ہیں، لیکن وہ پاس ہوئے چلے جا رہے ہیں. میرے خیال میں کہ سب سے مزیدار تو ظاہر ہے کیونکہ ہمارے پاس موقع نہیں تھا، سب سے مزیدار تو تھا کہ ملٹری آفیشلز یا جو آرمی ایکٹ میں جو ترامیم تھی وہ کس طریقے سے وہ پاس ہوئی تھی، وہ بڑی خوبصورتی سے سینٹ میں، جہاں کسی کو نہیں پتا کہ آئے کون سے آپ کے، کیونکہ کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے بائی وائس ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے ان آرڈر ٹو گیٹ اے بل پاسڈ. سو رپورٹرز جن سے میری بات ہوئی تھی ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کس نے، کون تھے جنہوں نے آئیز بولے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اعتراض کیا لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا. آج کی خبر ہے، میں تھوڑی سی جلدی سے بتا دوں، اور یہ اچھی بات ہے، جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ایک میں کہوں گی ایک کلیشے بن گیا ہے، کیونکہ ایک اور کالا قانون جو ہے ہم منظور کرتے ہیں. ابھی بھی ایسے قوانین ہیں جو میں کہوں گی کہ بہت ان پہ اعتراض کرنا چاہیے. اس میں آپ کا ڈیجیٹل سیفٹی کا ہے، اس میں پیمرا کا ہے، بٹ اس میں کچھ ایشوز ہیں. بٹ یہ ایٹ لیسٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ شور مچانے کے بعد، اعتراض کرنے کے بعد، جو آپ کو انٹیلیجنس یعنی کہ آئی بی اور آئی ایس آئی کے حکام کو جو امپاور کیا گیا تھا ٹو ریڈ ہومز وداؤٹ اے وارنٹ، ایٹ لیسٹ وہ ترمیم جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے. سو دیٹس اے گڈ تھنگ. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت ساری جو یونیورسٹیز ہیں، 24 میرے خیال میں یونیورسٹیز ہیں، مطلب پاکستان کے بچے ابھی اسکول میں اتنے نہیں جا رہے جتنے آپ یونیورسٹیز قائم کیے جا رہے ہیں.
वो भी बड़ी जल्दी जल्दी से कायम किया गया है। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी मेरे ख्याल में उर्दू न्यूज की तरफ से, कि उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो खुद भी एमपीए से उनका बिजनेस इंटरेस्ट है यूनिवर्सिटीज में, तो वो भी उन्होंने बड़ी तेजी से कर दिया था। एक कुछ यूनिवर्सिटी अंबर बनने जा रही है लाहौर के अंदर, ग्वादर यूनिवर्सिटी, पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर में होगी। लेकिन उस पर क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करना चाहिए अंबर, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसका हुकूमत से तो क्या ताल्लुक। तो वो डिफेंस इन सब का ये है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बिल हैं। इसमें एक इंटरनेशनल मेमन यूनिवर्सिटी भी है, कोई और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो प्राइवेट सेक्टर अगर बनाना चाहता है तो उस पे एतराज क्या है आपको आखिरी दिन पे लेजिस्लेशन पे? मतलब मैं कहती हूँ कि जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी पेशावर जो है मिसाल के तौर पर, उनके पास पैसे नहीं है अपनी प्रोफेसर को तनख्वाह देने के लिए। वो आए रोज एहतजाज करते हैं बेचारे, खबर लगती है भूल जाते हैं सब। प्रोफेसर नहीं है अंबर इन यूनिवर्सिटीज के लिए। पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस इनफ पीएचडीज। उसका अगर आप देखें उनके चार्टर जो पास हो रहे हैं, बिल पढ़ें, तो पता नहीं किस किस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। और मैं पूछता हूँ कि भाई इसमें पीएचडीज कितने हैं पूरे पाकिस्तान में जो ये चीज पढ़ा सकते हैं? PhDs का भी अलग मसला है। मतलब I mean, I don't want to go into the problem with the education system, but I want to say, I just want to point out कि आपके पास इस्लामाबाद जैसे शहर में एक इलाके में आपके पास दो दो यूनिवर्सिटीज या तीन तीन यूनिवर्सिटीज हैं। उनकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें बहरिया हो गई यूनिवर्सिटी हो गई, इज वन ऑफ एयर यूनिवर्सिटी इज अनदर वन। अकॉर्डिंग टू द लॉ, मैं आपको बता दूं, आपको एटलीस्ट 5 माइल रेडियस में, given ताकि आपका saturation ना हो and you have a market, you're not supposed to establish another university। लेकिन आपके पास दो तीन universities, and obviously we know कि किनकी universities हैं, वो कायम है। तो this is अंबर, how it's being आप क्वालिटी तालीम के खिलाफ हैं और तालीम के खिलाफ बात कर रही हैं कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो अच्छी तालीम हासिल ना कर सके। ये आपका बैरूनी एजेंडा जो है ना, ये वाला है। ये यूनिवर्सिटी नहीं बोले। आई आई एग्री विथ यू। मतलब 25-30 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यूं बिल पास हो गया है। I mean, I think there's for anybody who wants to read, there's several good pieces about कौन सी जो बिल जो है, ये जो फास्ट फूड लेजिस्लेशन के तहत मंजूर किए गए हैं। you know, some of them are good, some of them are not, and I think that it's kind of sad कि आपने जो लेजिस्लेटिव बिजनेस, जहाँ एक बिल्कुल ही लूड़ी लंगड़ी पार्लियामेंट जिसमें नंबर्स आपके पूरे नहीं है, आपने जो मर्जी पास करवाना है। आई डू वांट टू पॉइंट आउट कि इसमें जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो गया, कुछ ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने आवाज उठाई, और तमाम सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है। एक दो हैं, इरफान सिद्दीकी हो गए, इसमें रजा रबानी हो गए, मुश्ताक अहमद जे के हो गए। उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एटलीस्ट वोकली एतराज किया। मगर बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं सेनेट में हो जाए या नेशनल असेंबली में, जो खामोश रहे, उन्होंने बस ठप्पा लगा दिया। सो आई थिंक लेट्स एंड इट देयर। आई थिंक एक दिन जस्ट फॉर द ऑडियंस टू कंटेक्चुअलाइज, आपने जो काउंट्स का कहा सेनेट के अंदर, हम बात आप और मैं कर ही रहे थे कि गिनती कहीं से नहीं मिल रही। एक और इंटरेस्टिंग था, आई फॉरगेट एग्जैक्टली किस दिन का ये सेशन था, बट तकरीबन 12 या 15 बिल्स पास हुए नेशनल असेंबली में, जिसपे 100 से कम जो हैं लेजिस्लेटर्स मौजूद थे। और आप सोचें कि हाउस के अंदर मेजॉरिटी वजीर आजम बनने के लिए 171 वोट्स आपको चाहिए होते हैं। तो उस मेजॉरिटी भी नहीं थी हाउस के अंदर, और आपने ये कवानीन पास कर दिए। तो इट्स शेमफुल टू से द लीस्ट द वे दिस हैज बीन गोइंग ऑन ओवर द लास्ट 10 days। I think it's also worthwhile just I think maybe हम एक थोड़ा सा लिख सकते हैं just के just in terms of proportion के काफी कानून साजी हुई है कौमी असेंबली में in since I want to say since this government came into power, right? उसमें बहुत अहम जो बिल्स हैं, उसमें आपका नैब का भी है जिसपे इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। मगर उसमें दूसरी तरफ आपका नाअहली वाला भी जो कानून है, जिससे इमरान खान साहब को फायदा भी हुआ है कि वो नाअहल हुए हैं और 5 साल के लिए हुए, ताहयात नहीं हुए। So बिल्कुल I think it's worthwhile to sort of put down. If you want, I could do a very quick thread. I'm not going to talk about the merits, demerits, but just so you can have a sense of proportion कि कौन से कितने बिल्स अब हुए हैं और कितने बिल्स पिछले एक साल से, जब ये पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत आई थी, बिल्स पास हुए हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ तो ये तो हो गया पाकिस्तान का इलेक्शन डिलेड, खान साहब इन जेल, लेजिस्लेटिव बिजनेस, फास्ट फूड लेजिस्लेशन चल रहा है।
جاتے جاتے Amber, before we get to winners and losers, two interesting developments related to politics as well. امریکہ کے اندر Donald Trump was indicted. Interesting ongoing conversation going on over here, جہاں ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک سپلٹ ہے. ایک ونگ آف دا پارٹی لیڈ بائی پیپل لائک مائک پینس, انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کوشش کر رہے تھے الیکشن اوور ٹرن کرنے کی, وہ کنڈیمنیبل ہے, اس کے اوپر بنتا ہے ان کا کیس, اور اس پہ قانونی کارروائی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. اور دوسری طرف جو ہیں وہ رون ڈیسینٹس یا کیون مکارتھی ٹائپ ریپبلکنز ہیں, جو یہ آرگیو کر رہے ہیں بڑا وسفرسلی کہ یہ جو ہے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ایک حریف کے ساتھ جو کہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے صدر بائیڈن کے اگینسٹ اور بڑا پاپولر سیاستدان ہے. تو امریکہ میں بھی اسی طرح کی اب گفتگو ہو رہی ہے, اور ریپبلکن پارٹی میں ہمیں ایک دراڑ بڑی کھل کے واپسی نظر آ رہی ہے اس دراڑ کی. اور انڈیا کے اندر جہاں ہم نے کور کیا تھا کہ راہل گاندھی کو 2 سال کی سزا ہوئی جس کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے فرام دا لوک سبھا, تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے وہ سینٹنس سسپینڈ کیا ہے, جس کی وجہ سے اب وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں رہتی. کیس دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کیس ختم ہو گیا, اوور ٹرن نہیں کیا ہے, سسپینشن دی ہے اور وہ کیس اب چلے گا آگے. تو اگین ایسے جو ایشوز ہیں جس پہ ہم نے پاکستان سے ریلیٹڈ بات کی ہے, ہمیں امریکہ میں بھی اور انڈیا میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح کے اب کیسز نظر آ رہے ہیں جہاں انتقام ہو یا قانونی کارروائی ہو, اس کے اوپر بڑا ڈیبیٹ ہوتا ہے. Indeed, I want to point out very quickly کہ Watergate President Nixon کے خلاف جو کیس تھا اس کے بعد بھی پروجیکٹ ڈیموکریسی ایک ادارہ ہے, انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز ایشو کیے تھے صحافیوں کے لیے کہ وہ تاکہ یا انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے لیے تاکہ وہ جانچ سکے کہ جو کیس ہے وہ سیاسی مداخلت کے تحت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیونکہ اس وقت ٹرمپ بار بار ظاہر ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بار بار اور اس سے قبل میں کہوں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی, سب نے سیاسی مداخلت, پولیٹیکل انجینئرنگ, اس سب کا ظاہر دعویٰ کیا ہے. So I think it's worthwhile. I'll obviously send a link as well into these guidelines if anybody's interested in exploring them, and I'm trying to write a piece on it as well. اس میں آپ کو کچھ سوال جو آپ نے پوچھنے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت میں ہوتا ہے ان کے کیا کیا بیانات آئے ہیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ وہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں on obviously on the judicial process. پھر ظاہر ہے پروسیکیوشن کس طریقے سے کی جا رہی ہے, کیا اسی کیس میں اور دیگر جو لوگ جو پولیٹیشنز نہ ہوں یا پاورفل ہوں ان کو انہی کیسز میں سزا ہو چکی یا نہیں ہو چکی. These are a few guidelines or questions that you need to ask yourself in order to assess whether the case is proceeding or the order is because of political interference or not. But I think it's useful just to remember کہ سیاستدان یا legal teams بہت بیانات ظاہر وہ دیتے ہیں, they do claim many things. This is part of political rhetoric, narrative building, in order to make your legal, help your legal case as well. But as independent observers, as journalists, perhaps it is our responsibility to actually take a more serious assessment of whether these cases are indeed political or not. بالکل امبر, پلیز شیئر دا لنک, تو وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اور اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی, اگین دا ویژول سم ٹائمز شو یو رائٹ کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم انڈیا راہل گاندھی کی بات کریں تو وہ کیس میں ان کو 2 سال کی سزا ہوتی ہے, فوراً سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں لوک سبھا پہ. تو ہم ایک کوشچن اٹھا سکتے ہیں کہ جی اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہا ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر بھی پروسیجر ٹھیک ہے. لیکن جو بیانات کی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بیانات نہیں ملیں گے نریندر مودی کے یا امت شاہ کے کہ یہ بڑا اچھا ہوا, اس کو میں جیل میں ڈالوں گا, اس کا اے سی نکلواؤں گا جیل سے, اور اس کو راہل گاندھی کو جیل میں ہونا چاہیے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک کویشچنیبل ڈیسیجن ہے, لیکن وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اوور پاور نہیں کر رہا ڈیبیٹ کو. اسی طرح امریکہ میں اگر ہم دیکھیں تو صدر بائیڈن نے اتنے زیادہ بیانات نہیں دیے اس کیس کے اوپر, بڑا ایک میتھڈالوجی کے تحت یہ کیس آگے بڑھا ہے. کافی سارے کیسز ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے بڑھے ہیں جو کہ کافی ٹائم سے پروسیکیوشن جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ادارہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہا ہے. ہمیں بولسونارو کے کیس میں یہ نظر آتا ہے برازیل کے اندر فار ایگزامپل. پاکستان میں یہ کھلی کہانی تھی 2017 میں کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہونا ہے,
اور 2023 میں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ لنکڈ ہے باقی چیزوں سے. فار ایگزامپل اس ہفتے ہم نے اس پہ اتنی بات نہیں کی, ہم پہلے کر چکے ہیں, شہریار آفریدی کی ایک اور ویڈیو ہمارے سامنے نظر آئی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے جیل کے اندر. یو کوڈ ٹیل فرام ہز فیس, فرام دا وے ہی فزیکلی واز ان دیٹ شارٹ کلپ. تو جب اس طرح کا برتاؤ ہو کہ ڈیتھ سیل کے اندر آپ کے سیاسی حریفوں کو رکھا جائے جس طرح شہریار آفریدی کو رکھا جا رہا ہے, تو آپ کو ایک سگنل مل جاتا ہے کہ پاور جو ہے وہ کیا کچھ کرنے کو تیار ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے اپنے سیاسی حریف کے ساتھ. اور اس سے پھر ایک خوف ہی آتا ہے, ایٹ لیسٹ مجھے باہر سے بھی بیٹھ کے امبر, کہ ایک ملک کے اندر جہاں اس طرح کا سلوک ہو لوگوں کے ساتھ, تو وہاں پھر آپ کس طرح بیسک ڈیموکریٹک نارمس کو اپہولڈ کر سکتے ہیں. Yeah, no, absolutely agree. Ali Mohammed کو ریلیز کر دیا گیا, which was obviously good news for PTI as well. Very loyal, very memorably جب vote of no confidence ہوا تھا اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے MNAs نے walk out کیا تھا from the assembly. He remained within the Yep. assembly, was also jailed for and arrested multiple times and has finally been released as well and has reiterated his loyalty to Imran Khan and Pakistan Tehreek-e-Insaf. Shahryar Afridi still remains in jail, of course. And As Imran do Riaz many, is still missing, yes. Imran Riaz Khan is still missing as well. And as do many, اب بھی آپ کو دیکھیں, and we didn't talk about it in detail, لیکن اس وقت جو military courts اور civilians کو try کرنا چاہیے, وہ بھی معاملہ اس وقت لٹکا ہوا ہے. اور میرے خیال میں کہ ایک لسٹ مریم نواز ہے, ناٹ مریم نواز the politician but reporter from Geo جو کورٹس کور کرتی ہیں, انہوں نے بھی ایک لسٹ شائع کی تھی کہ کتنے سویلینز ابھی تک ان کے نام تھے, درج تھے, اور کہاں کہاں سے ان کو اس وقت ملٹری کورٹس یا ملٹری ٹرائل کے لیے ابھی بھی وہ زیر حراست ہیں. And I could sort of, let me see if I can pull it out while we're talking. But you know, I think elections is when these elections will be is obviously the big conversation at the moment, and we can clearly say that given کہ اس وقت CCI and digital census کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, we can see that this is going to be a very disenfranchised election for many people across the board. It isn't just one set of groups. Fully agree on that. And I think جو کاؤنٹ میں نے لاسٹ چیک کیا تھا وہ 102 تھے ملٹری کورٹس میں, ایٹ لیسٹ جو Yes, I رپورٹرز believe کہہ رہے تھے. you're right, absolutely. 102, yes. 102. تو اگین میں جیسے یہاں ڈایاسپرا میں میری لوگوں سے بات ہوتی ہے, تو وہ جب ڈیموکریسی اور اس کی بات کرتے ہیں تو ہم لائک کہ ٹھیک ہے, آپ کنسرن ہے آپ کا ملٹری کورٹس اور عمران ریاض خان مسنگ اور ختیجہ شاہ کے کیس کے اوپر, اور ہونا بھی چاہیے, بٹ وی آلسو نیڈ ٹو ریمبر کہ 2018 سے 22 میں 25 سویلینز کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹ کے اندر. اس وقت لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی. جن لوگوں نے آواز اس وقت نہیں اٹھائی وہ اب اٹھا رہے ہیں, تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں انہوں نے اس وقت نہیں اٹھائی, اور اب کنسسٹنٹلی یہ بات مینٹین کرنی چاہیے کہ اگر 25 پہ خاموش تھے تو 100 کا ہو رہا ہے, 100 پہ خاموش ہوں گے تو 500 کا شاید ہو جائے, اور 500 پہ بھی خاموش رہے تو پھر وہ 50,000 بھی ہو سکتے ہیں. تو اٹس گڈ دیٹ پیپل آر فائنلی ریئلائزنگ کہ پاور کس طرح یوز کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. لیکن اگین ایٹ این انڈیویجول لیول وی شوڈ آلسو کنسسٹنٹلی تھنک کہ کیا ہمارا کنسرن کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہے یا ایک پرنسپلز بیسڈ اپروچ ہے. اور پرنسپلز بیسڈ اپروچ میں اگر بات کی جائے تو شاید کولیشن بھی تھوڑی بڑی ہو جائے ان چیزوں کے اوپر, کیونکہ دیز ایشوز افیکٹ اس آل. I think we can end the podcast here Yep. today, Amber. Winners and losers پہ آتے ہیں, تو we'll start with you. Do you have any? Okay, I mean, obviously, I think the winner for me definitely is, I mean, it's really, I guess, it isn't related to Pakistan, but, you know, I did really enjoy the Barbie film. So I think everybody involved with the Barbie film is a winner as far as I'm concerned. Loser is Parliament for me this week. You know, it's been a pretty sad, depressing way in which legislation has been done. I do think within that there are winners again. ہم ان کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ineffectual ہے, maybe they're not enough, but yes, there are people who I named, جس میں مشتاق احمد ہو گئے جماعت اسلامی کے, جس میں جو عرفان صدیقی ہیں PMLN کے, یا رضا ربانی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, you know, that they have raised their voice against these excesses, especially in terms of legislation. So I guess there we are.
Yeah, no, I Loser, I think think, is an interesting case for me. I read this case. In fact, I think you sent me that link of these two influencers from Leicester who were charged with murder. And if you haven't seen this, haven't read about this case, it's actually really fascinating. Though जो Pakistani निजात Bartani खवातीन है, the mother is about 47 and the daughter is in her early 20s. Influencers on TikTok. Or there was a lover who was blackmailing, I think, who they parted ways, was blackmailing the daughter. They met in a parking lot. एक chase, बहुत exciting किस्म की chase हुई, and the blackmailers, he was driving the car, he had a friend with him, they were driven off the road by the daughter, the influencer, and they've been charged with murder, by the way. So I don't know yeah, that by me that's a case of note. बिल्कुल। और इस पे मुझे लगता है कि कोई ट्रू क्राइम पॉडकास्ट तो बनेगी, तो जब वो आएगी तो वुड बी एन इंटरेस्टिंग लेसन के क्या हुआ। ऑन माय साइड, अंबर, लूजर इज आल्सो पार्लियामेंट फॉर रीजंस यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। Excuse me. The winner for me this week, I didn't have any, but I'll go back to culture. I think Oppenheimer was the winner. A lot of people said lambi movie thi, itna drama interesting nahi tha jitni log baat kar rahe the. I found it fascinating, and I think I watched that, and then इस हफ्ते मैंने एक और documentary देखी Netflix पे. It's called Unknown. It's about the James Webb telescope. और उसका जो project था, और 1 घंटे की है, gets into the why this is so complicated and such an achievement, क्यों delays हुआ, etc., etc. Which again, makes you think about the power of science, and it was a feel good documentary in the sense कि दुनिया भर से जो astronomers हैं, scientists हैं, वो इतना excited थे इस achievement के बारे में, और इतने सालों के बाद उन्होंने एक टेलीस्कोप भेजा जो कि अब हमें बता सकता है कि दुनिया जब यूनिवर्स बिल्कुल अर्ली ईयर्स के अंदर किस तरह का था, बिकॉज द फर्देस्ट इट कैन लुक द फर्देस्ट बैक इन टाइम, लिटरली वी आर लुकिंग बैक इनटू टाइम. तो इट वाज इंटरेस्टिंग. और उसके अंदर एक जो कैरेक्टर थी डॉक्यूमेंट्री के अंदर, शी वाज वन ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की. उसने कहा कि I grew up to be fascinated with the stars, और क्योंकि मैं रूरल आर्कनसा में रहती थी तो वहाँ नाइट लाइट नहीं थी, तो बचपन से ही सितारों को देख देख के जो है वो हुआ कि साइंटिस्ट बनना चाहिए. Which made me think, अंबर, के कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे पाकिस्तान में, इंडिया में, developing countries में writ large, who could be scientists like that because they come from rural parts and have that question in their mind. But उनको basic education नहीं मिलती. And again, I think if we can just ensure basic education to the next generation, काफी सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं. Reminded me of that. Both those movies combined the power of education and science to transform not only societies but individuals as well. Right. I think I just want to say on that front, the Daud Foundation has been doing fantastic work in terms of STEM and science education. They have a great magnificent science center in Karachi that's been well worth a visit. Or they also sponsor visits. I think they also took a group of young students from Pakistan on a NASA tour. Yeah. So just to acknowledge the great efforts by the Daud Foundation. Yeah, and it's amazing stuff, though. I think we need more of that. Science, focus on science, and widening your worldview, etc. That can only happen through education. So that was my winner related to science this week. As always, please let us know if you want us to cover specific topics. I know पिछले हफ्ते जो एपिसोड थी उस पे किसी ने कमेंट किया कि मलिक रियाज वाली एपिसोड का क्या हुआ, तो वो आ जाएगी कि things have moved on at such speed, but it's I agree we need to do also, one on we that. have to remember कि maybe time तब आएगा जब अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला केस इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा. बिल्कुल, that's a good point. So we will do that. Apologize for the delay, but in the meantime, please let us know if there are other topics, and we will see you next week. Khuda Hafiz.